یہ ہوتا ہے پاس کا نا، یہ بٹن ہے روکنے کا. ہیلو، السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ اس پہ انٹرنیٹ پہ آپ لوگوں کی کلاس لے رہے ہیں، تو ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ کیا پڑھاتی ہوں میں کالج میں، اور اب جو آپ کا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہمارے پاس اپلائیڈ اکاؤنٹنگ. سبجیکٹ اپلائیڈ اکاؤنٹنگ ہے اور رائٹر کا نام ہے ملک خادم حسین. ٹھیک ہے، اور اب جو ہے باقاعدہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نام آپ کو میرا پتہ ہی ہے، تو سب سے پہلے میں اپلائیڈ اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن کراتی ہوں. چلیے، اب ہے ہماری ٹرمنالوجی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. بک سے پیج نمبر 15. Any concession or allowance or rebate given by seller to buyer on listed or scheduled price of goods is called as trade discount. Trade discount is deducted from the price and net price is recorded in the books of accounts. Trade discount is usually allowed or granted in following circumstances. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ مین تجارتی کٹوتی. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے یہ پڑھایا آپ کو، لیکن اب ریپیٹ کر رہی ہوں. اینی کنسیشن اور الاؤنس اور ریبیٹ given by seller to buyer on listed or scheduled price of goods is called as trade discount. جب فروخت کرنے والا کوئی چیز مقررہ قیمت سے کم قیمت پر فروخت کرے تو اس کو تجارتی کٹوتی کہتے ہیں. Trade discount is deducted from the price and net price is recorded in the books of accounts. تجارتی کٹوتی چیز کی اصل قیمت سے نفی کی جاتی ہے اور طے شدہ قیمت کا اندراج کیا جاتا ہے. Trade discount is usually allowed or granted in following circumstances. تجارتی کٹوتی عام طور پر کن صورتوں میں لاگو ہوتی ہے؟ نمبر 1، when goods are sold to the fellow traders. جب ساتھی تاجر کو مال فروخت کیا جائے تو ہم تجارتی کٹوتی دیتے ہیں. نمبر 2، when the buyer is an old customer. جب کہ خریدار پرانا گاہک ہو. نمبر 3، when goods are sold in bulk. جب مال زیادہ مقدار میں بیچا جائے تب کٹوتی دی جاتی ہے. when it is custom in the concerned trader. بعض اشیاء کی تجارت میں کٹوتی کا عام رواج ہوتا ہے. تو اس طرح سے کٹوتی 4 صورتوں میں کی جاتی ہے. تجارتی کٹوتی، جسے ہم اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں، کہ جب فروخت کرنے والا کوئی چیز مقررہ قیمت سے کم قیمت پر فروخت کرے تو اس کو تجارتی کٹوتی کہتے ہیں. تجارتی کٹوتی چیز کی اصل قیمت سے نفی کی جاتی ہے اور طے شدہ قیمت کا اس میں اندراج کیا جاتا ہے. کن کن صورتوں میں ہے؟ when goods are sold to the fellow traders. جب ساتھی تاجر کو ہم مال فروخت کریں. when the buyer is an old customer. جب کوئی خریدار پرانا گاہک ہو. when goods are sold in bulk. جب مال بڑی مقدار میں بیچا جائے. when it is custom in the concerned trade. بعض اشیاء کی تجارت میں کٹوتی کا عام رواج ہوتا ہے. یہ تھا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. پیج نمبر 15، فائنینشیل اکاؤنٹنگ. نیکسٹ ہماری ٹرم ہے
कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुई है तमाम टर्म्स। A discount which is allowed or received at the time of receipt or payment of cash before the due date। जब कोई फ़र्द अपना कर्ज़ा वक्त से पहले अदा करता है तो उसे कुछ छूट मिलती है, उसको हम नकद कटौती कहते हैं। The cash discount is called discount received। कैश डिस्काउंट को हम डिस्काउंट received भी कहते हैं। When it is received as income and discount allowed when it is guaranteed and treated as expenses। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो उसको हम डिस्काउंट अलाउस, और जब हम देते हैं तो उसको हम एक्सपेंस शो करते हैं। यानी जब कोई फ़र्द अपना कर्ज़ा वक्त से पहले अदा करता है तो उसे कुछ छूट मिलती है, उसको हम नकद कटौती कहते हैं। फ़र्ज़ करें आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने टाइम से पहले अदा कर दिए, तो वो शख्स जो आपको छूट देगा, जो रियायत देगा, उसको हम नकद कटौती कहेंगे। और उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिस्काउंट रिसीव, यानी आपको मिला है, कोई छूट आपको मिली है, किसी ने आपको दी है, तो उसे हम डिस्काउंट रिसीव कहेंगे और ये आमदनी में शुमार होती है। जब रियायत दी जाती है तो उसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं और ये डिस्काउंट खर्चे में शामिल होता है, कारोबार के खर्चे में शामिल होता है। चूँकि जब हमने किसी को छूट दी तो हमने जितने पैसे लेने थे उससे कम लिए हैं, तो वो हमारा कारोबार के लिए खर्चा शो होगा। कैश डिस्काउंट मीन a discount which is allowed or received at the time of receipt or payment of cash before the due date। The cash discount is called discount received when it is received as income and discount allowed when it is guaranteed as treated as expenses। नेक्स्ट टर्म है कमीशन। रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन टू एन अदर, नॉर्मली ऑन द परसेंटेज बेस इज कॉल्ड कमीशन। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए कोई खिदमत सरअंजाम दे और किसी ख़ास शरह से इसका मुनाफा वसूल करे तो ऐसे मुआवजे को कमीशन कहते हैं। जब कोई शख्स किसी दूसरे के लिए कोई खिदमत सरअंजाम दे कर किसी ख़ास शरह से इसका मुआवजा वसूल करे तो ऐसे मुआवजे को हम कमीशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री, गुड्स आर मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज स्टॉक। बराए फरोख्त माल या अशिया जो कि कारोबार के पास मौजूद हो, वो कारोबार की गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाती हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आर स्टॉक इन ट्रेड, द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड एज ओपनिंग इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन unsold
at the end of period is called as ending inventory. किसी मुद्दत के आगाज़ में, शुरू में मौजूद माल की मालियत को इब्तदाई ज़ख़ीरा यानी ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री और मुद्दत के आखिर पर मौजूद माल की मालियत को इख्तितामी या क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ होता है, अगर साल के शुरू में है तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगा, अगर साल के आखिर पर बचा हुआ है तो वो एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगा। स्टॉक या इन्वेंट्री मीन गुड्स आर मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज स्टॉक। गुड्स या मर्चेंडाइज जो हर टाइम आपके पास हो कारोबार में, उसको हम मर्चेंडाइज और गुड्स कहते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड। द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड एज ओपनिंग इन्वेंट्री। किसी मुद्दत के आगाज़ में मौजूद माल की मालियत को इब्तदाई ज़ख़ीरा। एंड वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ पीरियड। और जो गुड्स या सामान तिजारत साल के आखिर पर बच जाता है, इस कॉल्ड एज एंडिंग इन्वेंट्री। माल की मालियत को फिर हम इख्तितामी ज़ख़ीरे का नाम देते हैं, या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी या एंडिंग इन्वेंट्री भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बैलेंस। बैलेंस कहते हैं रिमेनिंग। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेट्स एंड टोटल क्रेडिटर्स ऑफ एनी अकाउंट्स इज कॉल्ड एज बैलेंस। किसी भी खाते के मजमूई डेबिट और क्रेडिट के फ़र्क को बैलेंस कहते हैं। किसी भी खाते के मजमूई डेबिट और क्रेडिट के फ़र्क को बैलेंस कहते हैं। यानी डेबिट साइड का मजमुआ करें किसी भी अकाउंट का, या और क्रेडिट साइड का मजमुआ करें, उनका जो फ़र्क होगा और दोनों का डिफरेंस जो है वो बैलेंस कहलाएगा। हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड्स के फ़र्क को बैलेंस कहा जाता है। When the debit is more, it is called as debit balance. जब डेबिट का मजमुआ क्रेडिट के मजमूए से ज़्यादा हो तो उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। एंड व्हेन द क्रेडिट इज़ मोर, इट इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। और जब क्रेडिट का मजमुआ डेबिट के मजमुए से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। यानी जिस साइड का टोटल जिस साइड से ज़्यादा होगा वो उसी साइड का बैलेंस कहलाएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट से तो फिर डेबिट बैलेंस कहलाएगा। बैलेंस मीन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड एज बैलेंस। When the debit is more, it is called as debit balance, and when the credit is more, it is called as credit balance. किसी भी खाते के मजमूई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के फ़र्क को बैलेंस कहते हैं। जब डेबिट का मजमुआ क्रेडिट के मजमुए से ज़्यादा हो तो उसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, और जब क्रेडिट का मजमुआ डेबिट के मजमुए से ज़्यादा हो तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है अकाउंट रिसीवेबल और डेटर। अकाउंट रिसीवेबल और डेटर। अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल और डेटर। जब किसी शख्स को उधार माल बेचा जाए और रकम वसूल ना हुई हो तो उसको काबिल वसूल या मकरूज़ कहते हैं। यानी अकाउंट रिसीवेबल
या डेटर कहते हैं। It is treated as current assets and recorded on the asset side of the balance sheet. इस रकम को बैलेंस शीट में असासा जात की सम्त पर लिखा जाता है। Account receivable or debtor mean a person to whom goods are sold on credit is called account receivable or debtor. जब किसी शख्स को उधार माल बेचा जाता है और रकम वसूल नहीं की जाती तो इसको काबिल वसूल या मकरूज कहते हैं। It is treated as current assets. इसको हम करंट एसेट शो करते हैं, ट्रीट करते हैं। एंड रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड, और इसको लिखा जाता है असासा जात की सम्त पर ऑफ द बैलेंस शीट में। जब किसी शख्स को उधार माल बेचा जाए और रकम वसूल ना हुई हो तो इसको काबिल वसूल या मकरूज कहते हैं। इस रकम को बैलेंस शीट में असासे की तरफ दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म अकाउंट पेबल और क्रेडिटर। वो तो अकाउंट रिसीवेबल और डेटर, ये है अकाउंट पेबल और क्रेडिटर। अ पर्सन from whom goods are purchased on credit is called as account payable or creditor. जब किसी शख्स से उधार माल लिया जाए और रकम अदा ना की गई हो तो इसको काबिल अदायगी या कर्ज खा कहते हैं। It is treated एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी के तौर पर फॉर द बिजनेस, कारोबार में। एंड रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इसको बैलेंस शीट में वाजबात की सम्त पर दर्ज किया जाता है। अकाउंट्स पेबल आर क्रेडिटर मीन a person from whom goods are purchased on credit is called as accounts payable or creditor. जब किसी शख्स से माल उधार लिया जाए और रकम अदा ना की हो तो इसको काबिल अदायगी या कर्ज खा कहते हैं। It is treated as short-term liability for the business and recorded on the liability side of balance sheet. इसको हम बैलेंस शीट में वाजबात की सम्त पर दर्ज करते हैं। नेक्स्ट टर्म है बैड डेट्स आर अनकलेक्टिबल। बैड डेट्स या अनकलेक्टिबल एक ही चीज़ है। बैड डेट्स कहते हैं डूबन कर्जों को, अनकलेक्टिबल जो कलेक्ट ना हो, जो वसूल ना हो, जिनके ना मिलने की उम्मीद हो। When any amount receivable from the debtor is not received and finally written off as uncollectible is called as bad debts. जब कोई कर्ज हतमी तौर पर वसूल ना हो सके और नुकसान में शुमार हो जाए तो उसको हम डूबन कर्जे कहते हैं या उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। इट इज़ ट्रीटेड एज लॉस ऑफ बिजनेस, ये कारोबार का बिजनेस शुमार होता, कारोबार में
नुकसान शुमार होता है. दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल. इस रकम को अकाउंट रिसीवेबल में से निकाल दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है. बैड डेट्स अनकलेक्टेबल मीन डूबन कर्जे. When any amount receivable from the debtors is not received, जो रकम हमने डेटर से लेनी होती है और हमें नहीं मिलती, एंड फाइनली रिटर्न ऑफ, तो उसको हम हतमी तौर पर राइट ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एज अनकलेक्टेबल, और उनको अनकलेक्टेबल शो करते हैं. इस कार्ड एज बैड डेट्स, तो उनको हम डूबन कर्जे या बैड डेट्स कहते हैं. यानी जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं और हतमी तौर पर फैसला हो गया है कि वो हमें नहीं मिलेंगे, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या कारोबार में हम उन्हें बैड डेट्स शो करते हैं. इट इज़ ट्रीटेड एज लॉस, ये नुकसान शुमार किया जाता है ऑफ बिजनेस, कारोबार का. दिस अमाउंट इज़ डिडक्टेड, इस रकम को डिडक्ट कर दिया जाता है, मनफी कर दिया जाता है, मिन्हा कर दिया जाता है फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल आर डेटर, कारोबार के अकाउंट रिसीवेबल से या डेटर से हम इसको माइनस कर देते हैं. नेक्स्ट टर्म है डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स मशरूत कर्जे. The estimated amounts of debtors, डेटर्स की तरफ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुछ ऐसी अमाउंट है विच आर एक्सपेक्टेड टू बिकम बैड डेट्स ड्यूरिंग द कमिंग पीरियड आर कॉल्ड एज डाउटफुल डेट. कर्ज खाहों या काबिल वसूल हिसाबात की वो मिकदार जिनके बारे में शुबा हो कि वसूल ना हो सकेंगे, इससे मुराद डूबन कर्जों का सालाना तखमिया है. यानी हम पूरे साल में अंदाज़ा कर लेते हैं कि कर्ज़ों की कुछ मिकदार हमें मिल जाएगी और कुछ डाउटफुल है, कुछ बैड डेट्स हैं जो हतमी तौर पर नहीं मिलेंगे और कुछ डाउटफुल हैं जिनके मिलने की उम्मीद है. वो हम तखमीना लगा लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं और उनको कारोबार में कहते हैं डाउटफुल डेट्स. फिर नेक्स्ट टर्म है रिजर्व फॉर बैड डेट्स. रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए रिजर्व रखना. बैड डेट्स क्या हैं? डूबन कर्जे हैं जिनका हमें हतमी तौर पर पता होता है कि ये हमें नहीं मिलेंगे, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए हम कुछ अपने प्रॉफिट में से रिजर्व के तौर पर रख लेते हैं और जिस साल हमें डूबन कर्जों का खदशा हो उस नुकसान को हम रिजर्व से पूरा करते हैं. An amount set aside to cover the future loss on account of doubtful debts is called as reserve for bad debts. वो रकम जो आइंदा साल के दौरान होने वाले काबिल वसूल कर्जात के नुकसान को पूरा करने के लिए साले रवा के नफ़ा से निकाल दी जाए, उसे हम रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहते हैं. एन अमाउंट सेट असाइड टू कवर द फ्यूचर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डाउटफुल डेट्स is called as reserve for bad debts. It is also called as provision for bad debts or reserve or provision for doubtful debts. जो रकम आइंदा साल के दौरान होने वाले नाकाबिले वसूल कर्जा जात के नुकसान को पूरा करने के लिए
سال رواں کے نفع سے نکال دی جائے اسے ہم ریزرو فار بیڈ ڈیٹس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹرم ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینسز۔ آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینسز واجب الادا اخراجات۔ واجب الادا اخراجات یعنی ابھی یہ اخراجات ہمارے ذمے ہیں، ہم نے ادا نہیں کیے۔ Outstanding expenses mean those expenses وہ expenses ہیں which have been incurred جو ہو تو چکے ہیں but not actually paid لیکن اصل میں ان کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ These are called as actual expenses۔ ایسے اخراجات کو ہم accrued expenses اور unpaid expenses اور outstanding expenses کا نام دیتے ہیں۔ accrued expenses، unpaid expenses یا outstanding expenses ایک ہی expense کے نام ہیں۔ These are recorded in the balance sheet on liability side۔ ان کو سال کے آخر پر بیلنس شیٹ میں واجبات کی سمت پہ درج کیا جاتا ہے۔ سال کے دوران ہونے والے ایسے اخراجات جن کی ادائیگی نہ ہوئی ہو اور سال کے آخر پر واجب الادا ہوں، ان کو سال کے آخر میں بیلنس شیٹ میں واجبات کی سمت پر درج کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سال کے دوران خرچہ ہو تو گیا ہے لیکن ابھی اس کی ادائیگی نہیں کی، تو جب ہم اپنی فائنل رپورٹ تیار کرتے ہیں تو سال کے آخر پر ہم ایسے خرچوں کو بیلنس شیٹ میں لائبلٹی سائڈ پر درج کرتے ہیں۔ Outstanding expenses mean those expenses which have been incurred but not actually paid. These are called as accrued expenses or unpaid expenses or outstanding expenses. These are recorded in the balance sheet on liability side۔ سال کے دوران ہونے والے ایسے اخراجات جن کی ادائیگی نہ ہوئی ہو تو وہ سال کے آخر پر واجب الادا ہوں گے اور ان کو سال کے آخر پر بیلنس شیٹ میں واجبات کی سمت پر درج کر دیا جائے گا۔ پھر نیکسٹ ہے پریپیڈ ایکسپینسز۔ It means the expenses which have been paid in advance but not yet expired۔ ایسے اخراجات جو ادا کر دیے گئے ہوں مگر ان سے استفادہ کی مدت ابھی باقی ہو، یعنی ابھی فائدہ لینا باقی ہو۔ ادا تو ہم نے کر دیے لیکن ان سے ہم نے ابھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ These are also called as unexpired expenses۔ ان کو ہم unexpired expenses بھی کہتے ہیں اور expenses paid in advance، ان کو ہم پہلے سے ادا شدہ expenses بھی کہتے ہیں۔ These are recorded in the balance sheet on asset side۔ ان اخراجات کو ہم بیلنس شیٹ کی اثاثہ جات والی سائٹ پر درج کرتے ہیں۔ ایسے اخراجات جو ادا کر دیے گئے ہوں مگر ان سے استفادہ کی مدت ابھی باقی ہو، ان کو سال کے آخر پر بیلنس شیٹ میں
असासा जात की समत पर दर्ज किया जाता है। मसलन आप रेंटेड बिल्डिंग में रहते हैं और उसका किराया आपने एडवांस दिया हुआ है 1 साल का, ठीक है, तो 6 माह के बाद अगर हम बनाते हैं तो 6 माह का तो हम फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी 6 माह हमारे बाकी हैं जो हमने एडवांस किराया दिया हुआ है। वैसे तो ये कारोबार का खर्चा है, हो चुका है, लेकिन इससे अभी हमने फ़ायदा हासिल नहीं किया। तो इस तरह के खर्चे जो कारोबार में होंगे उनको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंस के नाम बताए हुए हैं, इनको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कहते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो अदा कर दिए गए हों मगर इनसे इस्तिफादा की मुद्दत अभी बाकी हो। इनको साल के आखिर पर बैलेंस शीट में असासा जात की समत पर दर्ज किया जाता है। ठीक है, रिपीट करती हूँ। आज जो हमने शॉर्ट टर्म पढ़ी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमीशन, स्टॉक इन्वेंट्री, बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल आर डेटर, अकाउंट पेबल आर क्रेडिटर, bad debts, uncollectible, doubtful debts, reserve for bad debts, outstanding expenses, prepaid expenses,